شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کر کے پڑھیں گے، تبھی اس کا جو ہے نا وہ صحیح ہمیں فہم آتا ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33، 33، سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ انا، یقیناً، بے شک، اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ، منتخب کر لیا، چن لیا، آدم علیہ السلام کو، و نوحن، اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، و آل عمران، اور آل عمران کو۔ یہاں پہ ایک نئی چیز جو ہے نا، آل عمران ہے، علی العالمین، تمام جہانوں کے اوپر، یقیناً اللہ رب العزت نے چن لیا تمام جہانوں میں سے آدم کو، اور نوح کو، اور ابراہیم کے خاندان کو، اور عمران کے خاندان کو۔ یہ سورہ آل عمران کا نام جو ہے نا وہ آل عمران اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں پر آپ کو آگے ایک واقعہ ملے گا جو کہ آل عمران کی مناسبت سے ہے۔ یہ آل عمران کون ہے اور ان کا کیا درجہ اور کیا مرتبہ ہے، اس آیت سے بھی پتہ چلے گا اور آگے آنے والے کانٹیکسٹ سے بھی۔ تو پہلے ہم گرامر سے دیکھتے ہیں۔ انا حرف نصب ہے، مشبہ بالفعل ہے، اللہ اسم انا ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ بن رہا ہے نا، تو اسم انا ہے۔ اصطفیٰ آگے جو ہے وہ خبرو انا بنے گا جملے کی شکل میں۔ اصطفیٰ چن لیا، منتخب فرمایا، فعل ہے ماضی کا، جمع واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ منتخب فرمایا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، آدمہ مفعول ون، و نوحن، واو حرف عطف، نوحن مفعول ٹو، و آل ابراہیم، آل ابراہیم مرکب اضافی بن کے مفعول نمبر 3، و آل عمران، واو حرف عطف کے ذریعے آل عمران مفعول نمبر 4۔ یعنی یہ سارے مفعولات بن گئے اصطفیٰ فعل کے لیے، ٹھیک ہے۔ علی العالمین، علی اوپر، العالمین تمام جہانوں کے یا تمام لوگوں کے اوپر۔ عالم، عالم ہے نا، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے، یہ دنیا تو ایک چھوٹی سی ہے، پوری جہان میں کتنے عالم بنائے ہیں یہ اس حساب سے آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے اوپر ان تمام لوگوں کو چن لیا، یعنی فضیلت دے دی، یعنی کہ ان کو عزت سے منتخب فرمایا۔ تو علی العالمین مرکب جاری ہو گیا یہاں پہ نا، العالمین، علی العالمین مرکب جاری ہو کے متعلق ہو گیا، یہ متعلق بن گیا، ٹھیک ہے، یہ متعلق ہو گیا، اور اصطفیٰ سے لے کے علی العالمین تک جو ہے وہ خبرو انا بن گیا، تو جملہ اسمیہ اس طرح یہ پورا بن گیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کن لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ جن کو چن لیا گیا۔ سورہ آل عمران کی نصف اول کا دوسرا حصہ 31 آیات پر مشتمل ہے، یعنی ابھی تک تو ہم نے 31 آیات جو پہلے پڑھ لی ہے نا، ابھی اس کا جو باقی آگے 31 آیات آئیں گی نا، وہ آل عمران کے اوپر مشتمل ہے۔ اس حصے میں خطاب تو براہ راست نصارہ سے ہے، اور ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ جو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا اور ان کا ایک تثلیث یعنی ٹرینٹی کا ایک عقیدہ گھڑ جو لیا ہے، سب باطل ہے۔ عیسائیوں کے ہاں دو طرح کی تثلیث رائج رہی، یعنی اللہ ہے، حضرت مریم ہے، اور عیسیٰ ہے، یعنی بس یہ تین چیزوں کا ٹرائی اینگل ہے دنیا کے لیے، بس یہی ہے، اللہ، روح القدس، اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں پہ یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ چن لیا، کن کن کو چن لیا؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، اور آل عمران کو چن لیا۔ یہ تمام اللہ رب العزت کے بندے تھے اور چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ رب العزت کن کو چنتا ہے؟ جو اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی آزمائشوں کے اوپر پورا اترتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے احکامات کا بول دنیا میں بالا کرتے ہیں، جن کو دنیا کی کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی روش سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العزت ان کو چن لیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ قرآن میں مینشن کر کے بتایا ہے کہ ہم نے ان سب کو چن لیا ہے۔
यहाँ पे हजरत ईसा अलैहि السلام के नजरिए को हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ईसा अलैहि السلام को जब दुनिया में भेजा तो किस तरीके से सारा कुछ आया। लेकिन अगर हम इस आयत के सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को देखें तो हम सिर्फ इस आयत के बारे में बात करते हैं। हजरत मसीह का खानदान आदम, नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सिलसिले नबूवत और रसालत के असातीन और अमायद हैं, यानी कि ये उसकी सतून हैं बहुत बड़े बड़े। अब इनका जिक्र हो गया तो गोया नबूवत के पूरे पूरे एक सिलसिले का जिक्र हो गया ना। हजरत इब्राहिम के जिक्र के साथ उनकी आल के जिक्र को अगर देखा जाए तो दोनों दोनों सिलसिले, यानी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का भी और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी, दोनों सिलसिलों का जिक्र हो गया। इसी तरह हम देखें कि आला इब्राहिम में आले इमरान का भी जिक्र मिलता है। ये उस मुबारक खानदान का जिक्र है जिसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत हुई थी। इमरान बिन मातान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद का नाम था। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जद्दे मादरी यानी नाना हैं। इस सारे शजरे के जिक्र से ये बताना मकसूद था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी सिलसिले की एक मुबारक कड़ी हैं। उनकी वालदा, उनके नाना और उनके तमाम दूसरे आबा व अजदाद सब मालूम हैं। ये सारे खानदान एक दूसरे से वाबस्ता हैं, पेवस्ता हैं और एक दूसरे की जुरियत हैं। ठीक है ना। तो मतलब ये कि फिर सारे जब इस खानदान से इकट्ठे हुए हैं और एक शख्स को उलूहियत के मुकाम पे पहुंचा देने का क्या मतलब है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना देते हैं। तो आप देखिए ना कि उनकी वालिदा का नाम मौजूद है, उनके नाना का नाम मौजूद है, इसका मतलब है वो खानदान है, वो जुरियत है, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी नस्ल है जो कि हजरत हजरत नू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ही जाकर मिलती है। तो फिर वो किस तरीके से उनको एक तस्वुर कायम कर दिया गया कि वो इन सब लड़ी में से नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के बेटे नाउजुबिल्लाह उनको बनाकर भेजा गया है। तो वल्लाहु समीउन आलीम, हम इसमें देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से इशारा करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को नबूवत और रिसालत की का इंतखाब किया है ना, ये इंतखाब इल्म की वजह से था। अल्लाह ने जिनको इस मनसब के लिए इसका अहल पाया, जिनका इंतखाब किया, उनका इंसार उनकी सलाहियतों पर, अल्लाह की हिकमत के ऊपर, अल्लाह की मसलियत के ऊपर था। इसमें किसी खानदान को जाती किस्म का कोई शर्फ हासिल नहीं था, जैसे कि कोई शर्फ नस्बी हो जिसका घुमंड हो तो वो घुमंड में मुब्तला हो जाए। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये शान दी है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इज्जतदार बनाया, ये अल्लाह की शान है। जुर्रियतन औलाद हैं, बादुहा बाज उनके, मिम बादिन बाज में से, औलाद हैं उनके बाज उनकी बाज में से। वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन सब कुछ जानने वाला है, अलीमुन सब कुछ खबर रखता, सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। यहाँ पे जुर्रियतन जो है ना, अगर देखा जाए तो ये भी मफूल ही बनकर आ रहा है, पिछले जुमले के साथ कनेक्ट हो रहा है, मंसूब इसम जुमले के शुरू में आ गया, मफूल ही बनेगा, मफूल मुकद्दम हो गया। अगर इस जुमले के हिसाब से देखा जाएगा तो मफूल मुकद्दम हो गया, और हम अगर इसको पिछले जुमले के साथ कनेक्ट करते हैं तब भी ये मफूल ही बन रहा है। बादुहा बाज उनके, जुर्रियतन मफूल बनकर आ रहा है, इसको मफूल मुकद्दम कहेंगे। कल किसी ने मुझसे फेसबुक पे पूछा हुआ था, व्हाट्सएप पे के सॉरी यूट्यूब पे, कि मफूल पहले आ सकता है। तो आज के लेसन में आप देख सकते हैं कि मफूल पहले आ सकता है। ये मफूल पहले क्यों आया है? हमने देखा कि जब हम खबर को मुकद्दम करते हैं, यानी मुब्तदा की जगह खबर को पहले ले आते हैं, तो मकसद क्या होता है? ताकीद खबर पे, यानी खबर ज्यादा अहमियत की हामिल है। अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मफूल को मुकद्दम लेकर आया गया, जो कि आज हमने शायद पहली दफा ही देखा है, इसका मतलब क्या है? सबसे अहमियत का हामिल पूरे जुमले में ये मफऊल है, ठीक है ना। तो उसको मुकद्दम कर दिया गया, सबसे पहले हाईलाइट कर दिया गया। मैम एक बादुहा। बात पूछ लूं। जी। मैम मफूल तो होता है कि उसके बाद फाइल आए, तो हम्म। यहाँ तो उसके बाद इजाफी आ रहा है, बादुहा फिर एराब भी के मफूल हो सकता है। एराब के एतबार से क्या है? ये मुब्तदा बनेगा ना फिर। मफूल वाले जुमले में मुब्तदा क्यों होगा? मफूल वाले में मैं बादू, मैम फिर ये मुरक्कब इजाफी नहीं है।
मुरक्कब इजाफी है लेकिन फाइल है ना, बादू एक ज़र्फ है, इसका इराब देखिए। जी जी, वो तो मुझे पता है, ये मरफू हालत में आ रहा है ना। तो हाँ मरफू मरफू। हालत में अगर मुरक्कब इजाफी हो तो वो तो मुब्तदा भी बन जाता है ना। हाँ मुब्तदा तो बन जाता है, अगर आप इसको मुब्तदा बनाएं तो फिर इससे पहले मफूल है जुमले में मौजूद। तो जी जी, मफूल। वही वही कंफ्यूजन है ना थोड़ी। हाँ तो दो दो तरीके से देखिए, आप इसकी तरकीब देख सकती हैं। अगर आपने जी इसको मफूल मुकद्दम बना लिया है, ठीक है, बादुहा मुरक्कब इजाफी मिम बादिन मुतालिक हो गया, ठीक है। अगर आप इसको खबर मुकद्दम इसको मुब्तदा बना रही हैं और इसको खबर बना रही हैं, कायम मकाम जुमला इस्मिया हो गया। ये जुमला इस्मिया फिर जुर्रियतन के लिए बनेगा मफूल, ठीक है। या फिर आप इसको जुर्रियतन इसको मफूल करेंगी, बादुहा इसका बनाएंगी बाज उनके, इसका बनाएंगी फाइल, और मिम बादिन मुतालिक बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसका फेल जो है महजूफ है, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ ये दोनों तरह तरह से इसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप ला मौजूद है ना, ये अल्लाह ने उनको तमाम जहानों के ऊपर बर्तरी अता फरमाई है, औलादें हैं उनकी, ये एक दूसरे की औलाद हैं। ये मफूल आप इसको बनाएंगे पिछले जुमले के लिए भी, ठीक है। बादुहा मुरक्कब इजाफी है, मिम बादिन बाज में से मुरक्कब जारी है। वल्लाहु वाव हरफ अतफ है, अल्लाहु मुबतदा है, समीउन सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ सुनने वाला है, और अलीमुन। अल्लाहु मुब्तदा, समीउन अलीमुन इसकी खबर वन और खबर टू बनकर आ रही है। और इस तरह हम देख लेते हैं कि ये एक बन गया जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में हमें यहाँ पे क्या बताया गया, उसी आयत के मफहूम को वाजे किया गया है कि किस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए नबी हैं, और नबी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेम उनको खानदान में पैदा किया है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनकी वालदा भी हैं, वालदा हैं तो जाहिर सी बात है नानी भी होंगी, वालदा के बहन भाई भी होते हैं। और नाना का नाम आले इमरान नाना है, तो यानी कि उनके जद्दे अमजद भी मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं। अच्छा एक और चीज, इसको अगर हम देखें ना, ये मफूल है ना, मुकद्दम होकर आया है, इसको हम हाल भी बना सकते हैं पीछे जुमले का। कैसे? वो औलाद हैं उनमें से बाज एक दूसरे की, ये हाल बनकर आ रहा है ना, ये हाल भी बन जी सकता मैम। है, ठीक है। जी हाँ, हाल भी, लग रहा है मुझे भी। ये जी। हाल और मैम बनाएंगे। आगे, आगे जो नकरा इसम है, इसको हम नकरा इसम की सिर्फ नहीं, बाजू हा और मिन बाद इनको उसको सिर्फ बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी सिफ्त बना सकते हैं आप, इनको भी सिफ्त बना सकते हैं, और इन दोनों को जो है वो मुतालिक भी कर बाद हाथों ने मिन बादिन हो जाएगी, बाज में, बाज इनके बाज में से मिन बादिन। असल में ये मिन जो है ना, ये बाद तब यही दिया है, ठीक है, टोटल को जाहिर नहीं करता। बहुत कुछ में से कुछ को, बाज सारे नहीं, ठीक है। मिन बादिन उन सारों में से एक। तो ये मिन बादिन जो है ना, पहले हम बाद हुआ को बना देंगे मुब्तदा, और इसको खबर बना के फिर इन दोनों को जो है ना, ये फिर इन दोनों को सिफ्त बना सकते हैं, इन दोनों में से बाज उनके बाज में से, ठीक है ना। मुब्तदा खबर छोटा जुमला जब हम अंदर बनाएंगे, तो ये हाल है पूरा। और इस पूरे को भी फिर हम देखें ना, तरकीब में बाद हुआ मुब्तदा बन जाएगा, मिन बादिन इसकी खबर बनकर आ जाएगी। असल में ये जुर्रियतन जो है ना, ये हजरत, ये हाल किन किन का बनाया गया है, आले इब्राहिम का, आले इमरान का, जो ठीक है। ये जुमला इस्मिया हाल की तफसील बताने के लिए आया है असल में, या हम इसको ताकीद भी कह सकते हैं। असल में आता जो है ना, सिफ्त के बाद या हाल के बाद जुमला इस्मिया एक आ रहा हो, तो वो उसकी तफसील बताने के लिए आता है, ठीक है, उसकी तफसील बताने के लिए आता है। और ये वाला जो एक और जुमला इसमें आया ना, ये भी जो है, ये भी उसकी सिफ्त बन के ही आ रहा है, इसकी सिफात ही बयान कर रहा है ना। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। वाव हर्फ अतफ के जरिए ये दो जुमला जो पिछले जुमले का हिस्सा जो बन रहा है, अल्लाह ताला की सिफात को जो बयान कर रहा है, तो ये हाल की तफसील में आया है ये जुमला, ठीक है, ये सिफात बयान कर रहा है। और आप इसको कह सकते हैं कि ये जुमला इस्मिया जुर्रियतन जो हाल था ना, ये उसकी तफसील बयान करने के लिए आया। इसलिए अभी मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करती, बस छोटे छोटे जुमलों के हिस्सों को बनाती हूँ। हाल को पढ़ेंगे तो जुल हाल का जानना जरूरी है, जुल हाल की पहचान जरूरी है, इसलिए मैं सिर्फ इसको
مفعول کہوں گی، کیونکہ ابھی ہم نے یہ چیزیں ڈیٹیل میں نہیں نہ پڑھی، حال کی مکمل ڈیفینیشن. ویسے تو ہم نے یہ پڑھا کہ مفعول کیا ہوتا ہے، حال بھی مفعول ہوتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں نوعیت بھی مفعول ہوتی ہے، کوئی حالت بھی مفعول ہوتی ہے، کوئی کیفیت بھی مفعول ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ساری مفعولات ہی ہوتی ہیں. بیسک طور پہ یہ مفعول ہی ہے، بس مفعول کی ایک ٹائپ ہے کہ وہ پیچھے والے جملے کا حال بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس معنوں میں ہم اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. حال ذل حال کو ایک دفعہ جان لیں گے نا، تو پھر ہم حال